ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਟ ਕਵਰਸ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਕੀਆ ਥੀਟਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ओरिजिन ਦੇ ਐਂਗਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾल्ड ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫਾਈਨ। The angular displacement of an object in a given time interval may be defined as the angle which its position vector sweeps out in that time interval। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾल्ड ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫਾਈਨ। ਨਾਓ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ थीटा, ठीक है। फॉर्मूला अपने को की होंगे एंगल का, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। नाउ व्हाट इज एंगल हेयर, एंगल इज थीटा। आर्क केड़ी है इस केस दे विच, देखो इत्थे आर्क आ बन रही है ए बी आर्क, इहदी लेंथ आप अज्यूम कर लेने एल है, ठीक है। तो रेडियस आप कह दें कि वो आर रेडियस बना रहे, ठीक है। ओ ए ओ बी रेडियस की है आर है, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। एंगल हो गया थीटा, आर्क की होगी अपने को लेंथ होगी आप एल अज्यूम की है, रेडियस इज आर, सो थीटा इज आर एल ओवर R। Fine। Unit and dimension of angular displacement। Angular displacement की यूनिट होएगी SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ रेडियन, ठीक है। and it is a dimensionless quantity। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ dimensional formula ਵਾਲੇ ਚੈप्टर 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। now is right handed screw rule and right hand thumb rule। what is right handed screw rule? when a right handed screw is rotated in the sense of rotation of object in the direction in which the screw advances represents the direction of angular displacement vector। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਸਕਰੀਊ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਆਹ ਸਕਰੀਊ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਰੀਊ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕਰੀਊ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਸਕਰੀਊ ਰੂਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। when the fingers of right hand are curled in the sense of rotation of object। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਗਰ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਨ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। when the fingers of right hand are curled in the sense of rotation of object, then the thumb held perpendicular to the curled fingers points in the direction of angular displacement vector। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, when the fingers of right hand ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ they are curled in the sense of rotation of object। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੰਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਕੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਫਾਈਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ। ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਰ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਡੀ ਆਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ ਪਲੱਸ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ।
ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ मतलब कि ऑब्जेक्ट ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ मूव हो गया डी आर वैक्टर ਇੰਨਾ डिस्टेंस ਉਹਨੇ कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਤਾ डी थीटा। ठीक है मतलब कि ਇੱਥੋਂ ਦੀ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੈ रोटेट करदा करदा ਇੱਥੇ आ गया ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਤਾ डी थीटा। ठीक है डायरेक्शन यही हो गई ਉਹਦੀ रोटेट ਕਰਨ ਦੀ। नाउ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंगल की ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ आर्क ओवर रेडियस एंगल देखो इतने कि डी थीटा इक्वल्स टू आर्क इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਏਗੀ ए बी ओवर रेडियस की हो गया ओ ए सो ए बी आर्क ओवर ओ ए वैल्यू पुट कर दो डी थीटा इक्वल्स टू आर्क की है इतने डी आर वैक्टर। ठीक है हम इतने आप मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं सो आर्क इतने होगी डी आर ओवर ओ ए रेडियस कितना है आर डी थीटा इक्वल्स टू डी आर ओवर आर इतों डी आर की वैल्यू कढ़ ली आर डी थीटा डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा हम इन्हें वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो वैक्टर फॉर्म के होगा डी आर वैक्टर इक्वल्स टू डी थीटा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। ठीक है जो आप वैक्टर में लिखते हैं आप इन्हों की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये किदा लिखा देखो इतों डायग्राम तो पता लगेगा आह Z एक्सिस के अलॉन्ग की है यदि रोटेशन हो रही है। ठीक है Z एक्सिस के अलॉन्ग आप कह लिया कि की डी थीटा वैक्टर है इतने। ठीक है क्योंकि सारिया क्वांटिटीज़ की ने देखो सिंस ऑल थ्री क्वांटिटीज़ आर डी आर एंड डी थीटा आर वैक्टर्स इन नेचर। ठीक है सो ये वैक्टर्स ने तो आप इन्हों वैक्टर फॉर्म के शो कर लिया आर डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन में इन्होंने अलग शो कर लिया देखो ध्यान नाल आर वैक्टर की जी डायरेक्शन सी वो ये सी इतों दी आर वैक्टर से इनू सेम इदा ही आह ड्रॉ कर लिया। ठीक है फिर उस तो बाद इधर नूं उपर वाला की इधर नूं आह डी थीटा वैक्टर इतना सेम हो गया डी थीटा वैक्टर और किहड़ा रह गया डी आर हो गया डी आर की डायरेक्शन देखो इतों इधर नूं जा रही है आर डायरेक्शन है डी आर की तो देखो आर डायरेक्शन जो की हुई है डी आर वैक्टर की। ठीक है तो हुण आपां देखना ये ऑब्जेक्ट देखना किधर नूं रोटेट कर रहा सी इदां रोटेट कर रहा सी। ठीक है ऑब्जेक्ट एन जा रहा सी मतलब कि इदां रोटेट होएगा ये अगर इदां रोटेट हो रहा है तो देखो ऑब्जेक्ट की रोटेशन इधर नूं की बन रही है आह होगी तो कहते कि अगर आप स्क्रू नूं रोटेट करते हैं डायरेक्शन आह डायरेक्शन रोटेट करें तो देखो किधर नूं किधर नूं आ रहा है वैक्टर इधरों दी गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर है मतलब कि डी थीटा तो आर वाल आ रहा है ना कि आर तो डी थीटा जा रहा है इदा नहीं जा रहा डी थीटा तो आर वाल आ रहा है। ठीक है सो बाय अप्लाइंग राइट हैंडेड स्क्रू रूल it follows that the screw will advance in the direction of dr vector when it is rotated from d theta to dr। जो ऑब्जेक्ट कहते डी थीटा तो डी आर वाल रोटेट करांगे तो कहते अगे एडवांस करेगा डी आर की डायरेक्शन वाल अगे जाएगा। ठीक है तो आप पढ़े कहते स्क्रू जो आप रोटेट करते हैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के तो कहते जी डायरेक्शन जो अगे एडवांस करता है वो कि डायरेक्शन होंगी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की डायरेक्शन होंगी है। ठीक है सो की होएगी अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की डायरेक्शन होएगी सो डी आर वैक्टर इज इक्वल्स टू डी थीटा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होंगी की है it is defined as the ratio of angular displacement to the time taken by object to undergo the displacement it is denoted by omega average। सो एंगुलर वेलोसिटी अपने को की होंगी है ओमेगा एवरेज नाल डिनोट करते हैं ओमेगा बोलते हैं। ठीक है इट इज़ इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल मतलब कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने टाइम के विच। ठीक है सो इतों टोटल अपने को हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आह इतों की इतने तक टोटल है थीटा प्लस डेल्टा थीटा इतों की इतने तक हैगी है थीटा तो ओवरऑल कितनी आ होगी आ वाली होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो जिन्नी अपने को टोटल सी इतों की इतने तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस जिन्नी आ वाली हुई थीटा तो टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ऑब्जेक्ट बी तो सी मूव कर गया तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आ वाली। सो उन्होंने सबट्रैक्ट करके अपने को आ जाएगा डेल्टा थीटा सिमिलरली फिर से टाइम इंटरवल आ गया भी टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। ठीक है वो सबट्रैक्ट करके अपने को आ जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी मतलब कि जिन्ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है जिन्ने टाइम के विच। ठीक है डेल्टा थीटा की अपने को स्केलर है सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी होगी स्केलर क्वांटिटी। नैक्सट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का मतलब की होंगे एक एट ए टाइम जो आप एको टाइम पर आप चैक करनी है कोई पर्टिकुलर टाइम पर। सो इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल एंड टाइम इंटरवल एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। वो कहते आप कदों चैक करनी होंगी जो वो टाइम इंटरवल के जीरो में अप्रोच कर रहा बराबर जीरो के नहीं है जस्ट जीरो के नेड़े आ रहा है जो टाइम इंटरवल कहते की है जीरो के नेड़े अप्रोच कर रहा उस टाइम जी वो एंगुलर वेलोसिटी होंगी है दैट इज़ कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है सो इनू आप ओवरऑल लिख देने होंगे डी थीटा ओवर डी टी वैक्टर फॉर्म के आ गया ओमेगा वैक्टर इक्वल्स टू डी थीटा वैक्टर ओवर डी टी। नैक्सट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की होगी वो रेडियन पर सैकेंड क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट की सी रेडियन टाइम की होगी सैकेंड तो रेडियन पर सैकेंड। ठीक है एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t-1। नैक्सट इज टाइम पीरियड अपने को की होंगे है
कि ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू ने रिलेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ओमेगा ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगुलर वेलोसिटी ਸੀ, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होंगी कि एक सैकेंड के अंदर अंदर कितनियां रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई हैं, वट इज फ्रीक्वेंसी। सो न्यू उन्होंने आप डिनोट करते हैं न्यू के नाल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यू। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 1/t ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਿਊ ਇੱਥੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, t ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/ਨਿਊ, ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/ਨਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ओमेगा इक्वल्स टू 2π/ਨਿਊ। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, ठीक है। कला 1/सेकेंड है तो पर सेकेंड आ गई अपने को यूनिट और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नैक्सट इज है न्यूमैरिकल है, आप इतने न्यूमैरिकल्स भी करने हैं चैप्टर्स के। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड ऑफ अ वॉच और अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आर हैंड ऑफ अ वॉच कहते कितनी रोटेशन कंप्लीट करता, कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 12 आवर्स। 12 आवर्स के कहते एक आर हैंड कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन, ठीक है। दैट इज इट कवर्स एन एंगल ऑफ 2π/n किन्ने टाइम के 12 आवर्स क्या है तो उन्होंने कंप्लीट कर लो। 12 आवर्स, 12 आवर्स इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 1 आवर्स, 1 आवर में किन्ने मिनट होंगे 60, ठीक है। 1 मिनट के किन्ने सैकेंड होंगे 60 सैकेंड, इदा इनू लिख लेना है। 12 आवर्स इन्हों का मीनिंग ये हो गया 12 आवर्स हो गए मल्टीप्लाई 1 आवर्स किन्ने मिनट है 60 मिनट, मल्टीप्लाई 1 मिनट किन्ने सैकेंड है 60 सैकेंड, इन्होंने 60 कन्वर्ट सैकेंड कन्वर्ट कर लिया। सो एंगुलर स्पीड का अपने को फॉर्मूला की सी ओमेगा इज 2π/t, दैट इज 2π/ टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 12 × 60 × 60। सॉल्व करके अपने को आ गया π/21,600 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली अर्थ की रोटेशन लिए दस देना, अर्थ अपने रोटेशन कितनी कंप्लीट करती है 24 आवर्स के कंप्लीट करती है 1 रोटेशन, ठीक है। आप आर हैंड तो अर्थ की दसती, आर हैंड के 12 आवर्स के कंप्लीट करता 1 रोटेशन, ठीक है। मतलब कि 12 से सूई आती है एक बार वो क्लॉक की, वापस कंप्लीट रोटेशन होंगी है 12 से, मतलब कि 12 घंटिया के एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो आप 12 आवर्स टाइम लिया सी। अर्थ अपनी रोटेशन 1 किन्ने टाइम्स कंप्लीट करती है 24 आवर्स। एक दिन के अर्थ अपना पूरी रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स। इनू कंप्लीट इनू कन्वर्ट कर लो सैकेंड के, 24 मल्टीप्लाई 1 आवर्स किन्ने मिनट है 60, मल्टीप्लाई 1 मिनट्स किन्ने सैकेंड है 60। सेम मुद्दे सॉल्व करके अपने को ये आंसर आ जाएगा। नैक्सट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रहे हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ द रेडियस की है आर दिता होया, सेंटर की है तो ओ है, ठीक है। आप कहते हैं कि पी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ कोई भी टाइम ते टी ते, ठीक है। टी टाइम ते वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हैगी पी, तो वह पोजीशन वैक्टर हो जाएगा ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू आर वैक्टर, ठीक है। हुण ऑब्जेक्ट कहते टाइम टी प्लस डेल्टा टी विच रीच कर गया क्यू पॉइंट ते। इफ ऑब्जेक्ट रीचेज क्यू एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम ते पी पॉइंट ते सीगा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम ते क्यू पॉइंट ते आ गया ऑब्जेक्ट, दैन ओ क्यू वैक्टर अपने को बन गया आर वैक्टर प्लस डेल्टा आर वैक्टर। तो इतों उन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा आर वैक्टर। इतों की जोड़ा एंगल उन्हें बना लिया कि बन गया डेल्टा थीटा, ठीक है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम चैक करो अपने को सब तो पहले तो लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। सो लीनियर वेलोसिटी आप कहते हैं कि वी है, इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है इतने देर तक मूव किया, मतलब आ कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की उन्हें डेल्टा आर वैक्टर, ठीक है। इतने डेल्टा आर वैक्टर सी इतों की हम आप चैक करते हैं लेंथ वो लीनियर। अगर आप स्पीड फाइंड करनी है तो लीनियर स्पीड अपने को होंगी है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड होगी अपने को वी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की हो गया ऑब्जेक्ट ने पी पॉइंट तो क्यू पॉइंट तक मूव किया, डिस्टेंस मतलब जिन्नी आर्क की लेंथ होगी, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क ओवर टाइम, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हम कितनी अपने को दी हुई है डेल्टा एल। सो डेल्टा एल ओवर टाइम की है डेल्टा टी। वी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम हो गया ना, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ आर्क, किन्ने डिस्टेंस उन्हें कवर किया आर्क की लेंथ ओवर टाइम। सो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी ये आ गया। इतों की डेल्टा एल की वैल्यू कट के रख लो, डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या जाएगा वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। आप इक्वेशन यूज़ करेंगे बाद, ठीक है। हुण अपने को एंगुलर वेलोसिटी आप कड्डी सी लीनियर वेलोसिटी, मतलब कि सिंपल जी लीनियर स्पीड होंगी। हुण एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला की होंदा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी सी डेल्टा थीटा ओवर टाइम की सी डेल्टा टी। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी।
ठीक है। हुण इत्थे डेल्टा थीटा की है, एंगल बन रहा है। हुण एंगल का एक होर फॉर्मूला हुंदा है लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, या सीधा आर्क ओवर रेडियस हुंदा फॉर्मूला। ठीक है। सो लेंथ, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू की हो गया लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क की है डेल्टा एल। ठीक है। आर्क के डेल्टा एल ओवर रेडियस अपने को की है आर। सो डेल्टा एल ओवर आर, इतों डेल्टा एल की वैल्यू की आ जाएगी आर, इधर मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है। हुण यह आ गया इतों दी डेल्टा एल की वैल्यू, इतों चैक करो की है डेल्टा एल की वैल्यू की इतने वी डेल्टा डी। डेल्टा एल की वैल्यू वी डेल्टा डी आप इसकी जगह पुट करती है, देखो डेल्टा एल की जगह पुट की वी डेल्टा डी। ठीक है। इतने पुट करता इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, इदा ही लिखिया। हुण हाँ डेल्टा थीटा आ ये इधर जाके डिवाइड कर देना। सो की बन गया अपने को वी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई की बन गया डेल्टा थीटा, आह जोड़ा सगा इधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय डेल्टा थीटा की बन गया है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी की इक्वल सी ओमेगा दी। सो यदि वैल्यू पुट करती ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वैक्टर फॉर्म्स लिखना हो देन अपने को इदा आएगा v वैक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस r वैक्टर। फाइन। So this was the relation between linear and angular velocity. Next topic is angular acceleration. Angular acceleration just taking the ratio of change in angular velocity to the object, the time taken to undergo the change in angular velocity, मतलब angular velocity जिन्ना change होया over time taken। ये टॉपिक सेम ही है जोड़ा सेगा अपने को एंगुलर वेलोसिटी वाला, सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है। बिल्कुल उदा ही करना है, तुसीं खुद ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशनस। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਕੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर आ जाएगा, और एक आ एक्सप्रेशन आएगा अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी, देयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन और इधर यूनिट्स के रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड dimensional formula is m0 l0 t minus 2. Now is relation between linear and angular acceleration. ਆਪਾਂ ਇਹ एक्सप्रेशन ਕੀਤਾ ਹੈ relation between linear and angular velocity v vector equals to omega vector cross r vector. linear acceleration ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, normal acceleration is change in velocity over time, that is dv vector by dt. d by dt as it is v vector ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ omega vector cross r vector। ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ d by dt of a cross b। देखो ये वाला फॉर्मूला करना है डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल्स टू आएगा ए वैक्टर देन क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ बी वैक्टर फिर प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। मतलब कि एक बार पहला सब तो पहला ए वैक्टर एज इट इज बी वैक्टर का डेरीवेटिव ले लिया, फिर ए वैक्टर का डेरीवेटिव ले लिया, बी वैक्टर एज इट इज। अगर डेरीवेटिव या डिफरेंशिएशन तो अगर तुसीं पढ़िया होगा तो तुहानूं पता होगा। ठीक है। तुहानूं पहलां डिफरेंशिएशन दी वीडियोस उहदे बारे भेजिया होया है, अगर वो रिवाइज किया होगा तो तुहानूं नॉलेज होगी ये बारे। ठीक है। सो यही फॉर्मूला इत्थे अप्लाई करता है, इत्थे अपने कोल बन गया ए वैक्टर इज ओमेगा वैक्टर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर फिर प्लस डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। Now what is dr by dt, that is change in displacement over time, this is linear velocity। ठीक है। so this is v vector plus now what is this d omega vector by dt, this is change in angular velocity over time, this is angular acceleration, that is alpha vector। तो इन्हें वैल्यूज पुट करती हैं, ये आ गया ए वैक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस बी वैक्टर प्लस यदी जगह अपने को आ जाएगा अल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। मीनस ये अपने को सी लीनियर वेलोसिटी बन गई और ये अपने को सी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। हम ये दो कंपोनेंट्स बन गए, एक आ गया ओमेगा वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर प्लस दिस इज अल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, दो कंपोनेंट्स ने। नाउ ओमेगा वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर, दिस इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है। इनू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देंगे हैं। ठीक है। सो इन्हों दो कंपोनेंट्स लिख लेंगे, अपने को आ गया ए सी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर। ठीक है। हम ए क्रॉस बी ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ क्रॉस प्रोडक्ट बोल देंगे। ए वैक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल्स टू की ਹੁੰਦਾ ए बी साइन थीटा। मीनस दोनों वैक्टर ਜਿਹੜਾ एंगल हो गया ਇੱਥੇ पुट कर देंगे। ਇੱਥੇ ओमेगा ਤੇ v ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ एंगल कितना होएगा 90 डिग्री होएगा। ठीक है। सो कितना आ जाएगा ओमेगा v साइन 90, साइन 90 इज 1, सो ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय ओमेगा v।
नाउ ओमेगा इज इक्वल्स टू वट v बाय r, ਆਪਾਂ v इज इक्वल्स टू r ओमेगा पढ़िया ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, इतने आ जाएगा v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू की है ए सी, और या फिर तुम कि इतने v नू r ओमेगा अगर पुट कर दो इतने आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, ये दो रिलेशनस आ सकते ए सी। नैक्सट जो ये वाला कंपोनेंट है दिस इज ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। अल्फा क्रॉस r is called the transverse component of total acceleration. So alpha t is equals to alpha vector a t vector equals to alpha vector cross r vector, a cross b is equals to in the ab sin theta. Theta is 90 degrees, so this is alpha r sin 90. 90 is 1, sin 90 degree 1. So इत्थे आ गया a t is equals to r alpha. So this is the transversal component of acceleration. अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो उसके लिए आप करेंगे टोटल एक्सेलरेशन के लिए आप पहले टोटल एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट्स डिवाइड कर लिया, एक अपने को आ हो गया रेडियल कंपोनेंट ए सी वैक्टर दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ए टी वैक्टर। ठीक है, ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। जिवें मैग्नीट्यूड पहले लेंदे हुंदे सीगे, ठीक है, जिवें आपां आर करदे हुंदे सीगे, अगर आपां रिजल्टेंट कढदे हुंदे सी अपने कोल की आंदा हुंदा सीगा, अगर आ एक्स सीगा आ वाई सीगा, अगर रिजल्टेंट कढना तो आपां लिखदे सी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दैन वही चीज़ इत्थे ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पुट कर देनी, ए सी की वैल्यू जी आपां सॉल्व की सी आर ओमेगा स्क्वायर वो पुट करती, ए टी की वैल्यू जी हुण इत्थे कड्ढी है आर अल्फा वो पुट कर देनी। इत्थों अपने कोल की है टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नैक्सट इज अगर आप एंगल फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करनी, तो टैन थीटा, इतों टैन थीटा अगर आप चैक करेंगे कि होंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो दिस इज 80, या फिर इधरों ले लो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर आप दूसरी साइड तो लेने, अगर आप इदा लेने दैन इतों अपने को टैन हाँ इतने आएगा क्योंकि एंगल थीटा अपने को नीचे है ना बेस, तो अपने को बेस होएगा जिथे एंगल थीटा होएगा। ठीक है, ये बेस है, ये उत्ते आ परपेंडिकुलर है, सो टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। फाइन, सो इतों अपने को बन जाएगा ए सी ओवर ए टी। सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए टी, ए सी की वैल्यू पुट कर दो आर ओमेगा स्क्वायर, ए टी की वैल्यू आर अल्फा, कटिंग करके आर दी अपने को आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा। सो दिस इज टैन थीटा। नैक्सट केस है वैन सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनीफॉर्म। तो सर्कुलर मोशन यूनीफॉर्म हो गया, मोशन यूनीफॉर्म है मतलब कि होएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने को कॉन्सटेंट है, यूनीफॉर्म है मीनस कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल जा रहा, कॉन्सटेंट वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन की हो जाएगी 0। ठीक है, सो अल्फा 0 हो गया, तो आप आ वाली इक्वेशन के अगर आप इतने अल्फा 0 पुट कर देना अपने को एक्सप्रैशन सारा 0 हो गया, ए वैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा क्रॉस वी। दीज आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, दीज थ्री इन्होंने एज वेज लर्न करना है। नैक्सट इज यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन वही है जिहदे अपने कोल की हो जाता है अल्फा इज इक्वल्स टू की हुंदा 0 होंदा है, क्योंकि यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की आप इतने गल की सी सर्कुलर मोशन जो यूनीफॉर्म होए उसके अपने को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की 0 होगी, ए वैक्टर इक्वल्स टू आ जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ सेम। ठीक है, इनू कर लेना है। उस तो बाद वो दिता हो यूनीफॉर्म मोशन लिए टाइम पीरियड दिता हुआ ओमेगा इज 2π/t, इन्हों लर्न करना है। दैन फ्रिक्वेंसी आप पहले ही पढ़ी सी, करैक्टरिस्टिक्स जरूर करनी ने यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन के की होंगे कि उस एंगुलर स्पीड की होंगी है कॉन्सटेंट होंगी है, अगर एंगुलर स्पीड कॉन्सटेंट है तो उनकी एक्सेलरेशन की हो जाती है 0। ठीक है, दैन सिमिलरली अगे नैक्सट प्रॉपर्टीज़ ने कि लीनियर वेलोसिटी अपने को होंगी है कॉन्सटेंट मैग्नीट्यूड होंगे बट वो डायरेक्शन की है चेंज होती रहती है। नैक्सट यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होंदा है जिस एक्सेलरेशन कहते रेडियस दे सर्कल के रेडियस के लॉन्ग होंगी। ठीक है, सर्कल का रेडियस वो टुवर्ड्स सेंटर वाल मतलब वो जाती है एक्सेलरेशन। नैक्सट इज इट्स अ पीरियोडिक मोशन हैविंग अ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। पीरियोडिक मोशन होंदा है मतलब कि पीरियोडिक मीनस जिसका कुछ टाइम पीरियड दिता होंदा, डेफिनेट टाइम पीरियड होंदा ते फ्रिक्वेंसी। लास्ट इज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनू सॉल्व करने के लिए तुहानू डिफरेंशिएशन का चंगी तरह पता होना चाहिए। ये डेरीवेशन है, ये तुहानू खुद सॉल्व करनी करके देखनी है तुसी नोटबुक्स से, ता ही तुहाडी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, जस्ट देखो ये हैगा की है, अगर आप कहने कोई पार्टिकल पी मूव कर रहे सर्कुलर मोशन के यूनीफॉर्म मोशन है, यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, या एक पॉइंट पी ते वो पॉइंट आप पी ले रहे कोई पॉइंट पी ते है। ठीक है, उत्थे उहदे कोआर्डीनेट्स की ने एक्स एंड वाई, मतलब कि वह एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कितना एक्स एंड वाई एक्सिस तो की है वाई डिस्टेंस, वाई एक्सिस तो डिस्टेंस होता एक्स एंड एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस होता कितना है वाई है, मीनस वो एक्स वाई कोआर्डीनेट्स हो गए। ठीक है, एंड द पोजीशन वेक्टर अपने को हो गया आर, वो एंगल कितना बना रहा है वो एक्स एक्सिस के नाल थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, मतलब ये अपने कोल की सी भी जिन्ना एंगल स्वीप करता कोई पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए तो पॉइंट पी तक, दिस इज एंगुलर डिसप्लेसमेंट। नाउ एंगुलर डिसप्लेसमेंट सीगी ये, तो एंगुलर वेलोसिटी का अपने कोल फॉर्मूला की होंदा है एंगुलर डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। इत्थों हुण ओमेगा आ गया एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिसप्लेसमेंट ओवर एंगुलर टाइम। इत्थों थीटा की अगर आप वैल्यू कढ़नी हो की आ जाएगी, टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। एंड एक्स से वाई कोआर्डीनेट्स जो आप रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोआर्डीनेट्स लिखा सीगा, इदां ही लिखा सी एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा टी, ठीक है। एंड पोजीशन वैक्टर जिहड़ा हैगा उहनूं किदां लिखदे हुंदे आ, आर वैक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स से वाई दियां आ वालियां वैल्यूज़ पुट कर दो, एक्स आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये पोजीशन वैक्टर आ गया, मतलब डिसप्लेसमेंट आ गई ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी कढ़ण दे लई फॉर्मूला हुंदा v इज डी आर बाई डी टी, मतलब डेरीवेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन ऑफ आर वैक्टर मीनस डी बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर सारा लिख लिया इत्थे एज इट इज। फिर उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन ध्यान नाल करनी है, तुहानूं पहलां दसी होई भी किदां करनी, वो समझ के फिर वो अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखना। फिर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करके की एक्सेलरेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो उत्थों की है एक्सेलरेशन सॉल्व करनी, वो अपने को सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहला किया हुआ है।